Dear children, welcome to all in English class. As we learnt about adjectives and comparison of adjectives in previous lecture, today we learn about the correct use of some adjective words. Let's start. What is adjective? An adjective is that word which describes noun or pronoun or adds to its meaning. It points out the quality, the quantity और नंबर ऑफ नाउन. प्यारे बच्चों, विशेषण वह शब्द है जिसकी सहायता से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ही इज़ ए बॉय. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. इन दिस सेंटेंस वी एड ए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वर्ड क्लेवरर. नाउ ही इज़ ए क्लेवरर बॉय. In this, we use cleverer as a qualitative adjective word. Let's take another example. Give me rice. Now, in this we also add a quantitative adjective word some. Give some, give me some rice. Another example. We have cows. We have two cows. In this we use number adjective as a two. So, here the italicized words cleverer, some and two give additional information about boy, rice, cows respectively. Such words are called adjectives. Let's read about such adjective words further. Let's read some and any. These are two adjective words. Now, how we use in these words in sentence to express quantity of degree? Some is used in affirmative sentences, whereas any is used in negative and interrogative sentences. प्यारे बच्चों, जब हम इन शब्दों को एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई हैव सम मनी. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देयरफॉर वी यूज़ सम हेयर. आई हैव नॉट got any bread. This is a negative sentence. Here we not use some, we not use some, we use any. Have you any bread? This is an interrogative sentence. Here we use any. There are a number of pairs of terms which behave like some and any. प्यारे बच्चों, कुछ और शब्द भी हैं जो सम और एनी के साथ की तरह ही बिहेव करते हैं, जैसे someone, somebody, somewhere. These words behave like a some. Similarly, anybody, anyone, anywhere behave like an any. Let's take an example. He was rude to somebody. This is affirmative sentence, therefore we use somebody. He was not rude to anybody. This is negative sentence. Here we not use somebody. Here we use anybody. Was he rude to anybody? This is an interrogative sentence. Therefore we use here anybody. Now, another adjective words: elder, eldest, and older, oldest. Elder, eldest are applied to persons only and are now used in speaking of members of same family. Then is not used after elder. बच्चों, elder और eldest केवल व्यक्तियों के लिए ही यूज़ होता है और ख़ासकर जब सेम फैमिली के व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही हो वाक्य में, तब वहाँ पे elder और eldest ही यूज़ होते हैं और elder के एकदम बाद then कभी नहीं लगता है. इसी प्रकार older and oldest are applied both persons and things and then is sometimes used after older. जबकि older और oldest जो है वो व्यक्तियों और चीज़ों के दोनों में अप्लाई होता है और then इसमें बीच में यूज हम older के साथ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर. अब ये सेम फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने एल्डर शब्द यूज़ किया है. ही वॉज द एल्डर ऑफ द टू सन्स. यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, एल्डर ऑफ द टू सन्स बोला है, एल्डर देन द टू सन्स नहीं बोला है, क्योंकि एल्डर के साथ कभी भी देन नहीं लगता है. दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन द अदर. यहाँ पे हम थिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज़ बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम ओल्डर लिख रहे हैं तभी. सोहन इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास. यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर की बात नहीं हो रही है, ये क्लास की बात हो रही है, तो इधर हमने तभी ओल्डेस्ट शब्द यूज़ किया है, ना कि एल्डेस्ट. लेट्स टेक अनदर एडजेक्टिव वर्ड, फार्दर, फर्दर. फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट. फर्दर मीन्स समथिंग इन एडिशन. फार्दर जो है बच्चों वो डिस्टेंस को शो करता है, फर्दर कुछ चीज़ ऐड करने के लिए यूज़ होता है. लेट्स टेक एग्जाम्पल्स.
इलाहाबाद इज़ फार्दर फ्रॉम जयपुर देन आगरा। अब यहाँ पे फार्दर शब्द की यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है इलाहाबाद का जयपुर और आगरा के बारे में। दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट फर्दर डिले, यहाँ पे एडिशन की गई है इसलिए यहाँ पे हमने फर्दर शब्द यूज़ किया है। टेक अनदर एडजेक्टिव वर्ड्स, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस और पोजीशन, वेयर नेक्स्ट डिनोट्स पोजीशन। बच्चों नियरेस्ट को हम डिस्टेंस और पोजीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेक्स्ट केवल पोजीशन के लिए यूज़ होता है, कभी भी डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज़ ए माइल फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहे हैं तभी हमने नियरेस्ट लिखा है। हिज शॉप इज़ नेक्स्ट टू अस, यहाँ पे हम हिज नियरेस्ट टू अस नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे पोजीशन शो की है। हिज शॉप इज़ नेक्स्ट टू अस तभी बोला गया है। नेक्स्ट यूज़ किया जाता है पोजीशन के लिए। मैनी मच, मैनी इंडिकेट्स नंबर, मच इंडिकेट्स क्वांटिटी। कई बार आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि मैनी के लगाएं कि मच लगाएं, तो ये ध्यान रखना बच्चों, नंबर के लिए जब भी संख्यावाचक विशेषण बताना हो तो हमेशा हम मैनी यूज़ करते हैं, और जब भी हमने क्वांटिटी जब है परिमाणवाचक बताना हो तो हम क्या करते हैं, मच यूज़ करते हैं। अब आओ एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स की संख्या बताई जा रही है तो यहाँ पे हमने तभी मैनी की लगाया। ही हैज़ मच मनी, अब यहाँ पे परिमाण है, क्वांटिटी बता रहे हैं तो यहाँ पे मच लगा। मनी जो है मच मनी आएगा, ना कि मैनी मनी नहीं आएगा। लेट्स टेक अनदर एडजेक्टिव वर्ड्स, ईच और एवरी। ईच इज़ यूज्ड वन ऑफ द टू थिंग्स और वन ऑफ मैनी थिंग्स, वेयर ग्रुप इज़ लिमिटेड एंड डेफिनेट। बच्चों जो ईच है वो उस चीज़ दो के में एक चीज़ को बताने के लिए या बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को बताने के लिए होता है, और लिमिटेड जहाँ पे हमें लिमिटेड और डेफिनेट नंबर का पता हो। वेयर एज एवरी इज़ यूज्ड फॉर वन थिंग्स एंड नेवर फॉर टू थिंग्स वेयर व्हेन द ग्रुप इज़ इनडेफिनेट। और एवरी वहाँ होता है एक वन थिंग्स को ही बताने के लिए होता है, कभी भी दो चीज़ों को बताने के लिए नहीं होता, और सबसे विशेषकर बात जहाँ पे इनडेफिनेट चीज़ों की बात की जा रही हो। For example, each of two men was arrested. Each of two men was arrested. Similarly, every student of the class appeared in the examination. तो ऊपर जो है लिमिटेड और फाइनाइट पर्सन की बात हो रही है, टू मैन, तो तभी हमने ईच लगाया। अब क्लास में यहाँ पे नीचे हमने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो एक ही वन थिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट की एवरी लगाया। नाउ लेट्स टेक ईच अदर एंड one another. Each other is used for two while one another is used for more than two. बच्चों अगर दो व्यक्तियों या दो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना हो तो ईच अदर की बात करेंगे हम, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही होगी तो वहाँ पे वन अनदर लगाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ईच अदर आएगा। वी शुड हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्टीज़। अब यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने वन अनदर लगाया। Let's take another adjective word, all or whole. All denotes number as well as quantity, whereas whole denotes quantity only. जो all है वो हम नंबर और क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि whole जो है हमेशा क्वांटिटी के लिए ही यूज़ होता है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह से समझें। All the people came to greet him on his arrival। अब यहाँ पे पीपल के नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने ऑल लगाया, हम कभी भी होल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ही ड्रैंक द होल मिल्क। अब होल मिल्क क्वांटिटी की बात हो रही है मिल्क की, तो होल हम पहले प्रेफर करेंगे। ऑल भी क्वांटिटी में यूज़ होता है मगर उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है होल शब्द यूज़ होगा इधर। लेट्स टेक अनदर एडजेक्टिव वर्ड, लेस और फ्यूअर। लेस डिनोट्स द क्वांटिटी, फ्यूअर डिनोट्स द नंबर। बच्चों इसमें भी आप यही डिफरेंस देख रहे होंगे कि लेस को जो है हम परिमाणवाचक विशेषण के भी तौर पे यूज़ करते हैं और फ्यूअर को हम संख्यावाचक विशेषण की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ लेस मिल्क इन हिज कप देन इन द अदर। और सेकेंड वन इज़ देयर इज़ फ्यूअर रूम्स इन दिस हाउस देन इन द अदर। अब रूम्स को हम नंबरों में काउंट करेंगे तो यहाँ पे तभी हमने फ्यूअर यूज़ किया, और मिल्क जो है हमारा क्वांटिटी में होता है तो इसमें लेस यूज़ किया। नाउ डियर चिल्ड्रन, let's learn about few adjective word.
दैट इज़ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। तो इसके बारे में बात करें, फ्यू हैज़ नेगेटिव सेंस एंड मीन्स नन और हार्डली एनी। जो फ्यू है बच्चों, वो उसका नेगेटिव सेंस होता है, उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं या बहुत कम, हार्डली एनी, बहुत वेरी मच लिटिल। आ फ्यू इज़ यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सम बट नॉट मैनी। आ फ्यू जब हम यूज़ करेंगे, फ्यू क्या गया, ए फ्यू लग गया, तो वो हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है और उसका पॉजिटिव वे में हम लेते हैं कि कुछ तो है मगर बहुत कम है। द फ्यू हैज़ बोथ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंस, इट मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। बच्चों, जो द फ्यू यूज़ होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है, मगर वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स नो फ्रेंड्स और हार्डली एनी। कहने का मतलब ये है, फ्यू जब सिंपल है, ना आ लगा ना दा लगा इसमें, तो इसका मतलब यही है कि नो फ्रेंड्स, उसका मतलब उसमें उसके कोई भी दोस्त नहीं है। इस वाक्य का यह अर्थ निकला। ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ए फ्यू लगा दिया, मतलब कुछ दोस्त हैं। ऊपर अगर ए नहीं लगाया था तो उसके जो फ्रेंड्स हो ना के बराबर हैं, मतलब है ही नहीं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल सेल्फिश। अब यहाँ पे ये एफर्मेटिव सेंटेंस बना है, मगर इसका नेगेटिव सेंस बन रहा है कि उसके कुछ फ्रेंड्स तो हैं मगर सारे ही, थोड़े फ्रेंड्स हैं मगर वो सारे ही क्या हैं, सेल्फिश हैं। वो नेगेटिविटी शो कर रहा है। नाउ सिमिलरली लर्न अबाउट द लिटल एडजेक्टिव वर्ड। लिटल, आ लिटल, द लिटल। लिटल मीन्स हार्डली एनी, आ लिटल मीन्स सम, द लिटल मीन्स सम बट नॉट मच। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। ही हैज़ लिटल मनी, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है। नो मनी और हार्डली, बहुत ही कम। ही हैज़ ए लिटल मनी, मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं। आ लिटल तभी हमने इसमें लगाया। ही हैज़ स्पेंट द लिटल मनी ही हैड, मतलब वो उसी तरह है जैसे द फ्यू यूज़ करते हैं हम, वैसे ही यहाँ पे द लिटल यूज़ किया है और नेगेटिव सेंस में है कि उसके पास थोड़े से पैसे थे परंतु सारे खर्च कर दिए। नाउ लर्न अबाउट लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट। लेटर एंड लास्ट रेफर टू द पोजीशन, वेयर एज लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। जो है लेटर और लास्ट जो है पोजीशन को दर्शाते हैं और लेटर और लेटेस्ट जो है वो टाइम को दर्शाते हैं। लेटर एंड लेटर इज यूज्ड फॉर टू, लास्ट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। ही अराइव्ड लेटर देन आई। अब यहाँ पे ये देखो, ये टाइम को दर्शा रहा है तो इसलिए हमने लेटर यूज़ किया है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, अब लेटेस्ट भी, ये भी टाइम को, समय को दर्शा रही है, तो हमने व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ टाइम को दर्शा रही है। ही केम लास्ट ऑफ ऑल, ही केम लास्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पोजीशन है, ही वो सबसे बाद में आए। आई कुड नॉट हियर द लेटर पार्ट ऑफ हिज स्पीच, अब ये भी स्पीच के पोजीशन के पार्ट की पोजीशन को बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लेटर पार्ट लगाया, यहाँ पे लेटर शब्द यूज़ किया। तो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट adjective words and their use. Moreover, you understand very much about this. I hope that you can use them in a very proper way while writing a sentences. Dear children, there is a worksheet along with this video attached. Kindly solve the questions in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is correct use of these adjective words. Thank you. Be happy and safe.